आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बच्चों रेजोनेंस, कंडीशन फॉर रेजोनेंस, इक्विवेलेंट रेजोनेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, तो चलिए पहले हम देखते हैं रेजोनेंस। हियर व्हेन प्रॉपर्टी ऑफ ए मॉलिक्यूल्स, व्हेन ए properties of molecule, when a properties of a molecule of a molecules, when a property of molecules cannot explain by single Lewis dot structure, cannot explain by single Lewis dot structure, single Lewis dot structure, even sometime we made more than one Lewis dot structure, made more than one Lewis dot structure, that all structure canonical or resonating or contributing structure structure but real structure is resonating hybrid. Real structure is resonating hybrid, resonance hybrid, which can explain all properties and characteristic of molecule. Okay बच्चों, when a properties of a molecules
cannot explain by single Lewis dot structure. Even sometime we made more than one Lewis dot structure, that all structure canonical, resonating or contributing structure, but real structure is resonating hybrid which can explain all properties and characteristics of molecule. Okay, देखिए बच्चों, here we take benzene. Okay, here we take benzene. देखिए यहाँ पे 1 minute. ओके, देखिए ये जो हमारा बॉन्ड लेंथ है 1 2 एंड ये हमारा 1 2, ये जो डबल बॉन्ड वाला लेंथ है, ये जो हमारा सिंगल बॉन्ड लेंथ है 1 2, इसका लेंथ कितना होता है? हियर वी राइट बॉन्ड लेंथ C12 का बॉन्ड लेंथ किसके बराबर होगा? सिंगल बॉन्ड का C1 and C2 between bond length is 1.54 एंगस्ट्रॉम. ओके, एंड ये देखिए ये जो है, ये जो डबल बॉन्ड है C1 C2 के बीच बॉन्ड लेंथ इसके बराबर होगा 1.34 एंगस्ट्रॉम. ओके बच्चों, एंड ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसका बॉन्ड लेंथ किसके बराबर होगा? बॉन्ड लेंथ बिटवीन बॉन्ड लेंथ बिटवीन कार्बन कार्बन एटम इज इक्वल टू व्हाट? 1.39 एंगस्ट्रॉम. ओके बच्चों, आगे देखिए जो हमारा रेजोनेंस होता है, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज ए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट. ओके, यहाँ पॉइंट बना के लिख लीजिए, पॉइंट बना के लिख लीजिए यहाँ पे. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज ए हाइपोथेटिकल concept. Resonance is a hypothetical concept. Okay, second point, resonance is a permanent effect. Resonance is a permanent effect. Okay बच्चों, थर्ड पॉइंट, general resonance is stabilizing phenomena. General resonance is stabilizing phenomena. Okay,
फोर्थ पॉइंट यहाँ करके लिख लीजिए, इन रेजोनेंस we can't in resonance we can't change we cannot change in resonance we cannot change position of atom. Okay, it involves only delocalization of it involves only delocalization of pi electrons lone pair or negative charge free radical and positive charge. Okay बच्चों, in resonance we can't change position of atom. It involves only delocalization of pi electrons, lone pair, negative charge, free radical and positive charge. Okay, फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए, resonance is a intermolecular phenomena. Okay, resonance is a intermolecular phenomena. ओके बच्चों, 6 पॉइंट, एटम्स और ऑर्बिटल which are participate in resonance must be in same plane. Okay, must be in the same plane, okay, compound must be planar, or linearly planar. 1 minute, compound must be planar, 1 minute हो जाइए, और इनरली प्लेनर.
innerly planar only in resonance area. ओके बच्चों, एटम और ऑर्बिटल विच आर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस मस्ट बी इन द सेम प्लेन. कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर और इनरली प्लेनर only in resonance area. पॉइंट नंबर 7 यहाँ पे लिख लीजिए. इन रेजोनेंस प्योर p orbital और प्योर d orbitals are participated ओके, जिसे हम अनहाइड्राइड ऑर्बिटल्स बोलते हैं. अनहाइड्राइड ऑर्बिटल्स. ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8. hybrid orbital never participate in resonance. ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9. मोर स्टेबल resonating structure will give more contribution resonating hybrid. ओके बच्चों, hybrid orbital never participate in resonance. Okay, more stable resonating structure will give more contribution resonating hybrid. Okay, in resonance pure p orbital and pure d orbital are participated. रेजोनेंस में बच्चों प्योर p ऑर्बिटल एंड प्योर d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, जिसे हम अनहाइड्राइड ऑर्बिटल्स बोलते हैं. ओके, कंडीशन फॉर रेजोनेंस. चलिए बच्चों देखते हैं कंडीशन फॉर रेजोनेंस. फर्स्ट इज डबल बॉन्ड positive charge at double bond and positive charge at conjugated position.
ओके, देखिए हियर CH2 डबल बॉन्डेड विथ CH सिंगल बॉन्डेड विथ CH2 प्लस। ओके बच्चों, चलिए इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। हियर देखिए, ये जो हमारा पाई बॉन्ड है यहाँ डिपोलाइजेशन करेगा, ठीक है, एंड इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे बनेगा प्रोडक्ट CH2, यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्डेड विथ CH डबल बॉन्डेड विथ CH2। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पे हो रहा है एलाइलिकेशन। ओके, एलाइलिकेशन। ओके बच्चों, देखिए इसका हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। CH2 CH2। ओके, यहाँ पे डॉटेड लाइन, ठीक है, ये डेल पॉजिटिव डेल पॉजिटिव। ओके, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हियर नंबर ऑफ resonating structure, number of resonating structure कितने हैं, 2 है बच्चों, ठीक है, इज इक्वल टू 2 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक, ये हो गया फर्स्ट कंडीशन फॉर रेजोनेंस। अब चलिए हम सेकंड देखते हैं कंडीशन। सेकंड कंडीशन फॉर रेजोनेंस, डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज at conjugated position, at conjugated position। ओके बच्चों, हियर देखिए, हियर गिवन ions is CH2 double bonded with CH single bonded with CH2। ओके, यहाँ पे माइनस चार्ज। ओके, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, निगेटिव चार्ज यहाँ पे, ठीक है, 1 मिनट, निगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट करेगा। दिस इज एलाइलिक anion। ओके, दिस इज एलाइलिक anion। ओके बच्चों, यहाँ पे क्या बनेगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर CH2। ओके, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, सिंगल बॉन्डेड विथ CH डबल बॉन्डेड विथ CH। ओके, डबल बॉन्डेड विथ यहाँ पे CH2। ओके बच्चों, रेजोनेंट हाइब्रिड इसका बनाइए, CH2 सिंगल बॉन्डेड विथ CH सिंगल बॉन्डेड विथ CH2। ओके, यहाँ पे
डॉटेड लाइन, यहाँ पे भी डॉटेड लाइन, ठीक है। यहाँ पे हमारा डेल निगेटिव, डेल निगेटिव। यहाँ पे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने? 2। ओके, सो हियर वी राइट नंबर ऑफ resonating structure is equal to 2. Okay, number of resonating structures जिसे हम RS से लिखते हैं, resonating structure is equal to यहाँ पे लिखेंगे 2. ओके बच्चों, दिस इज डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज व्हेन डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज एट कंजुगेटेड पोजीशन। ओके, थर्ड देखते हैं हम बच्चों, डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर एट कंजुगेटेड पोजीशन, उस केस के लिए। सो हियर वी राइट थर्ड, व्हेन डबल बॉन्ड एंड लोन पेयर at conjugated position, देखिए here we write, 1 minute, here we take compound CH2CHCl, chloroethane. Okay, this is vinyl chloride. Okay बच्चों, विनाइल से हम विनाइलिक क्लोराइड लिख लो, विनाइलिक क्लोराइड। ओके बच्चों, चलिए इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। CH2 सिंगल बॉन्डेड विथ CH, डबल बॉन्डेड विथ Cl पॉजिटिव। ओके, देखिए ये 1 मिनट रुक जाए बच्चों, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहेगा ना, 1 मिनट, तभी नहीं अब विनाइलिक क्लोराइड होगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है। ये देखिए क्लोरीन के पास लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है, एक लोन पेयर यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, सिंगल बॉन्डेड भी CH, डबल बॉन्डेड भी Cl पॉजिटिव। ओके, यहाँ पे क्लोरीन के पास 2 लोन पेयर बचा, ठीक है। अब चलिए इसका हम इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। रेजोनेंट हाइब्रिड CH2 रेजोनेंट हाइब्रिड बना रहे हैं बच्चों। देखिए सिंगल बॉन्डेड विथ CH, सिंगल बॉन्डेड विथ Cl। ओके, एंड यहाँ पे हम डॉटेड लाइन बनाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पे हम डेल पॉजिटिव लिखेंगे एंड यहाँ पे निगेटिव चार्ज आया है, यहाँ पे डेल निगेटिव। ओके बच्चों, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हो गए? 2 हो गए। सो हियर वी राइट नंबर ऑफ resonating structures, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जिसे हम RS से लिखते हैं, इज इक्वल टू आ गया 2। ओके, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने बच्चों, सो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल टू 2 लिख लिया। ओके, ठीक है बच्चों। अब चलिए आगे हम देखते हैं, व्हेन डबल बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल एट कंजुगेटेड पोजीशन। देखिए पॉइंट 4,
कंडीशन फॉर रेजोनेंस का पॉइंट 4 व्हेन डबल बॉन्ड एंड फ्री रेडिकल at conjugated position ओके बच्चों, देखिए here we take compound CH2 double bonded with CH, okay, single bonded with CH2, ओके। देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पे ये जो फ्री रेडिकल है एक इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट होगा, ठीक है, एंड एक जो यहाँ पे फ्री रेडिकल है इस पे, ठीक है, एंड देखिए एक जो फ्री रेडिकल है इस पे शिफ्ट होगा, ठीक है बच्चों। दोनों मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये शेयरिंग करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए क्या बनेगा CH2, ओके। यहाँ पे एक फ्री रेडिकल आ गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बचा, सिंगल बॉन्डेड विथ CH, ओके। एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पहले था, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयरिंग में आ गए, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, एक इलेक्ट्रॉन ये, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्डेड विथ CH2, ओके। दिस इज एलाइलिक फ्री रेडिकल, ओके। यहाँ पे लिख लीजिए एलाइलिक फ्री रेडिकल, या फार से लिख देते हैं, इसको डिनोट करते हैं फ्री रेडिकल को, ठीक है। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, 2। so here we write number of resonating structures नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसे हम RS लिखते हैं, इज इक्वल टू लिखेंगे 2। 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, सो यहाँ पे हमने लिख लिया नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल टू 2, ओके। चलिए फिफ्थ कंडीशन फॉर रेजोनेंस लिख लेते हैं, when double bond conjugated with double bond, okay। fifth point, when double bond conjugated with double bond, ओके, जिसे हम BD से डिनोट करते हैं डबल बॉन्ड, ओके, फॉर्मूला DB से, ठीक। Here we take 1,3-butadiene, okay। Here we take compound 1,3-butadiene, ए करके यहाँ पे लिख लो, CH2 double bonded with CH, single bonded with CH, okay, double bonded with CH2, ओके। ये हमारा बच्चों 1,3-ब्यूटाडाइन है, 1,3-ब्यूटाडाइन, ओके। when डबल बॉन्ड इज कॉन्जुगेटेड विद डबल बॉन्ड, उसके लिए कंडीशन है। देखिए बच्चों ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा,
ठीक है, देखिए फिर इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए ये डबल बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, देन ये इस पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या बनेगा प्रोडक्ट, देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा इसका CH2, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, सिंगल बॉन्डेड विथ CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे CH सिंगल बॉन्डेड विथ यहाँ पे CH2 प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ओके बच्चों, ठीक। हियर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। अब यहाँ पे ये जो हमारा डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये डबल बॉन्ड जब यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर, यहाँ पे बन जाएगा, बताइए, एंड ये निगेटिव चार्ज जो है यहाँ शिफ्ट होगा, तो क्या बन जाएगा स्ट्रक्चर यहाँ पे CH2 डबल बॉन्डेड विथ CH, सिंगल बॉन्डेड विथ CH, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ओके, सिंगल बॉन्डेड विथ CH2 और यहाँ पे हमारा निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके बच्चों, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए बताइए, 2। ओके, तो यहाँ पे लिख लेंगे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल टू 2। So here we write number of resonating structure is equal to 2। ओके, देखिए here in 1,3-butadiene, in 1,3-butadiene resonating take place in both sides, in 1,3-butadiene resonating take place in both the direction, in the both the direction, so it is bidirectional। okay, so it is bidirectional। ओके बच्चों, चलिए हम बी देखते हैं। Here we take compound NH2 है बच्चों, यहाँ पे NH2 is single bonded with CH, is double bonded with CH, okay, single bonded with CH and here double bonded with CH2। ओके, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा
देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ बनेगा। देखिए ये जो है नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। देखिए एंड ये डबल बॉन्ड सबसे पहले यहाँ शिफ्ट होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये लोन पेयर यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे H2N डबल बॉन्डेड विथ CH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे बनेगा हमारा CH, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्डेड विथ CH2। ओके, अब देखिए ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। एंड इस पे पॉजिटिव चार्ज, देखिए ये इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। 1 मिनट रुक जाए बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, रुक जाइए 1 मिनट। यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखिए H2N नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, डबल बॉन्डेड विथ CH, सिंगल बॉन्डेड विथ CH, इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, देन सिंगल बॉन्डेड विथ CH, डबल बॉन्डेड विथ CH2। ओके, ये हमारा डबल बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक। देखिए ठीक, तो यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा स्ट्रक्चर। H2N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के, डबल बॉन्डेड विथ CH, यह सिंगल बॉन्डेड विथ CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH सिंगल बॉन्डेड विथ यहाँ पे CH2, इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा कार्बन पे, ठीक है। चलिए इसका हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। हियर we write H2 nitrogen single bonded with CH, okay, single bonded with CH, single bonded with CH, single bonded with CH2, okay। देखिए यहाँ पे डॉटेड बॉन्ड बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारा डेल पॉजिटिव एंड कार्बन के ऊपर डेल निगेटिव, ओके। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, 2, ठीक है बच्चों। तो हियर वी राइट नंबर ऑफ resonating structure रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गया बच्चों, इज इक्वल टू 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, ठीक है। ये जो ऊपर था इसमें कितने बने थे, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज 2, ओके। एंड इसमें कितने बचे बने, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल टू 3। कुछ नोट पॉइंट बता रहा हूं बच्चों, लिख लीजिए नोट करके। नोट, 1 मिनट। देखिए हियर फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज never participate, never participate, forward charge never participate in resonance, in resonance, ओके। देखिए here
NH2, ओके। ये इस पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है, फॉर्मल चार्ज है। फॉर्मल चार्ज नेवर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, ओके, दिस इज फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज, ओके बच्चों। देखिए हियर OH2 प्लस, यहाँ पे प्लस क्या है, फॉर्मल चार्ज है, ओके। फॉर्मल चार्ज नेवर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, ओके, दिस इज फॉर्मल चार्ज, ओके बच्चों। थर्ड देखिए, यह नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज, ओके, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ, ठीक है। ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज नेवर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, ओके, दिस इज फॉर्मल चार्ज, ठीक है। यहाँ पे देखिए हियर, ये हमारा बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन से कनेक्टेड यहाँ पे NH3, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या है, हियर पॉजिटिव चार्ज इज फॉर्मल चार्ज, ओके, फॉर्मल चार्ज, ओके बच्चों। चलिए सेकेंड पॉइंट देखिए, हियर सेकेंड पॉइंट, any compound any compound any compound must have three parallel any compound must have three parallel p orbitals, p orbitals, okay. Any compound must have three parallel orbitals for resonance, okay बच्चों। थर्ड पॉइंट, for ions must have two parallel p orbits, two parallel p orbitals, ओके। कुछ कंपाउंड दे रहा हूं बच्चों, उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बताइए, कितने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। हियर डिफरेंट resonating structures, different resonating structures, देखिए बच्चों, different resonating structures, here we take this compound, here we take नाइट्रोजन, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, ओके। देखिए
ये जो हमारा कंपाउंड ये बना है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताने हैं, कितने बनेंगे। ठीक है बच्चों, 1 मिनट। वन मिनट। देखिए, ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, एंड ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड है। ठीक है, पहले से ही देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा। ठीक है, एंड यहाँ वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, ये जो निगेटिव चार्ज है यहाँ शिफ्ट होगा। ठीक है, एंड ये डबल बॉन्ड यहाँ पे निगेटिव चार्ज बना देगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए, निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, एंड यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, एंड देखिए, यहाँ पे हमारा प्लस चार्ज एंड डबल बॉन्ड पहले से ही है। ठीक है, अब देखिए, ये जो हमारा निगेटिव चार्ज है इस पे शिफ्ट होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ बना देगा निगेटिव चार्ज। 1 मिनट रुक जाइए, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, सॉरी, निगेटिव चार्ज यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा, एंड ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, अब देखिए, यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, एंड जो यहाँ पे डबल बॉन्ड था यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पे फिर से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एंड यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड पहले से ही है। ठीक है, अब देखिए, ये डबल बॉन्ड हमारा यहाँ पे शिफ्ट होगा, एंड ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। देखिए, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, ओके, एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड हमारा पहले से ही है। ठीक है, ये डबल बॉन्ड हमारा, ये निगेटिव चार्ज यहाँ डबल बॉन्ड बना लेगा, एंड ये हमारा डबल बॉन्ड यहाँ पे नाइट्रोजन पे शिफ्ट होगा। ठीक है, सो हमारा सेम स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, इनिशियल फर्स्ट स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने? 5। ओके, तो यहाँ पे लिख लेंगे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल टू आ गया 5। ओके, अब चलिए रेजोनेंट हाइब्रिड बना लेते हैं। 1 मिनट। हियर वी मेक रेजोनेंट हाइब्रिड। देखिए, यहाँ पे बना लीजिए रेजोनेंट हाइब्रिड। यहाँ पे नाइट्रोजन, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। ओके, एंड हियर ऐसा कुछ होगा। यहाँ पे निगेटिव चार्ज। ठीक,
टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने? 5। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल टू 5 आ गया। ओके बच्चों, चलिए अब हम नेक्स्ट कंपाउंड लेते हैं। सेकेंड इज, देखिए यहाँ पे ये हमारा बेंजीन हो गया बच्चों, ठीक है। 1 मिनट, हियर वी टेक दिस कंपाउंड। ओके बच्चों, बेंजीन पे यहाँ पे OH कनेक्टेड है, ठीक है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक, 1 मिनट, ठीक। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा एंड ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके बच्चों, देखिए कुछ ऐसा बनेगा। देखिए यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड यहाँ पे OH, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक लोन पेयर बचा ऑक्सीजन के पास एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। एंड ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। ओके, अब देखिए आगे, यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है। एंड ये देखिए ये जो हमारा डबल बॉन्ड है यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखिए कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले से ही है, ठीक है। यहाँ पे OH है, ठीक है। ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर बचा है एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा निगेटिव चार्ज था यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड, ओके। एंड ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ओके, आगे देखिए बच्चों, देखिए ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ठीक है। ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा एंड ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज को इस पे शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए यहाँ पे OH है, ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर बचा है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, ओके, ठीक है बच्चों। एंड यहाँ पे ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे आ गया ये डबल बॉन्ड, ठीक। एंड यहाँ पे आगे देखिए, अब देखिए आगे, ओके। यहाँ पे OH है, ओके बच्चों। ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर बचा है एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ओके। अब देखिए ये जो हमारा निगेटिव चार्ज है यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो गया, ये हो गया एंड यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ओके बच्चों। ये यहाँ पे शिफ्ट किया डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे बना दिया, ठीक है। ये हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए, ठीक है। फेनॉल की ये सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए बच्चों? टोटल 5, ओके। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल टू 5 लिख लेंगे। नंबर ऑफ resonating structure, number of resonating
स्ट्रक्चर इज इक्वल टू आ गया 5। ओके, अब आगे देखिए हाइब्रिड रेजोनेंस हाइब्रिड, यहाँ पे दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, हियर OH ऑक्सीजन पे डेल पॉजिटिव। ओके, एंड यहाँ पे ये डॉटेड लाइन, ठीक, यहाँ पे भी डॉटेड बॉन्ड। ठीक है, ये हमारा रेजोनेंट हाइब्रिड बन गया। ओके बच्चों, चलिए कुछ नोट पॉइंट्स यहाँ पे लिख लीजिए। तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, फेनॉल के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गए? 5 आ गए। ओके बच्चों, बना लीजिए आप लोग। कुछ यहाँ पे नोट पॉइंट करके लिख लीजिए। नोट हियर, नोट में फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे, इन लीनियर मॉलिक्यूल, in linear molecule resonance effect observed in linear molecule resonance effect observed at both terminal positive, at both in linear molecule resonance effect observed at both terminal is positive. Okay, is sorry बच्चों, in linear molecule resonance effect observed at both terminal position. Okay, in linear molecule resonance effect observed at both terminal position. Okay, second point, in benzene molecule resonance effect, in benzene molecule resonance effect observed at ortho and para position. ओके बच्चों, in linear molecule resonance effect observed at both terminal position, in benzene molecule resonance effect observed at ortho and para position. Okay, equivalent resonance, चलिए बच्चों देखते हैं। it more effective than normal resonance. ओके, देखिए बच्चों, जो हमारा इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है मोर इफेक्टिव होता है देन नॉर्मल रेजोनेंस। ओके, देखिए यहाँ पे हमारा एसिटिक एसिड ले लेते हैं। हियर वी टेक एसिटिक एसिड CH3 single bonded with carbon, and here
ऑक्सीजन एंड हियर OH। ओके, ये बच्चों हमारा एसिटिक एसिड है, दिस इज एसिटिक एसिड। ओके बच्चों, इज इन इक्विलिब्रियम विथ एसिटेट आयोन CH3 C। यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे O-। ठीक बच्चों, ये हमारा एसिटेट आयोन है, दिस इज आवर एसिटेट आयोन प्लस H+। ओके, एसिटिक एसिड इज इन इक्विलिब्रियम विथ एसिटेट आयोन प्लस H+। ओके, चलिए इसका हम इक्विवेलेंट रेजोनेंस बनाते हैं। देखिए क्लियर, कार्बन हो गया यहाँ पे ऑक्सीजन है, ठीक है, विथ कनेक्टेड विथ डबल बॉन्ड, एंड यहाँ पे हमारा CH3 हो गया, ठीक है बच्चों, यहाँ पे O, यहाँ पे माइनस चार्ज। ओके बच्चों, ये हमारा एसिटेट आयोन है, ठीक, ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर है, ठीक है। अब देखिए ये जो हमारा डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH3। ओके, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, एंड यहाँ पे निगेटिव चार्ज शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ओके बच्चों, डबल बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन। ओके, इसका हाइब्रिड रेजोनेंस बना लेते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर CH3 सिंगल बॉन्डेड विथ कार्बन एंड हियर ऑक्सीजन, एंड यहाँ पे भी ऑक्सीजन। ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा डेल निगेटिव। ओके, ये हमारा हाइब्रिड रेजोनेंस है। ओके बच्चों, अभी हमने देखा इक्विवेलेंट रेजोनेंस। ओके, ये हमारा हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ओके बच्चों, ये ठीक, ये हमने ए देखा, सपोज दिस इज ए। अब चलिए बी देखते हैं हम। Here we take H2CO3. Okay, second B is H2CO3. H2CO3 is in equilibrium with 2H plus CO3 2-। ओके, चलिए इसका हम इक्विवेलेंट रेजोनेंस बनाते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हियर कार्बन डबल बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन। ओके, ठीक है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन हो गया, इस पे निगेटिव चार्ज, एंड एक ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया, इस पे भी निगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है। ओके बच्चों, देखिए ये डबल बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जो निगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कुछ ऐसा बनेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कार्बन यहाँ पे है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज, एंड देन यहाँ पे भी ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया, एंड यहाँ पे निगेटिव चार्ज शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर है। ओके बच्चों, अब देखिए एक ये हमारा निगेटिव चार्ज जो है इस पे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है,
और ये हमारा डबल बॉन्ड इससे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। हियर कार्बन डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, ओके, वन कार्बन डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, एंड यहाँ पे एक ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे भी ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज, ओके। ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर है? 3 लोन पेयर है, ठीक है। कितने इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने? 3, ओके। चलिए इसका हाइब्रिड रेजोनेंस बना लेते हैं। हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, देखिए। कार्बन, ठीक है, एक ऑक्सीजन यहाँ अटैच हो गया, एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एंड एक ऑक्सीजन यहाँ पे, ठीक है। कुछ ऐसा बनेगा। डॉटेड बॉन्ड यहाँ पे भी डॉटेड बॉन्ड, एंड यहाँ पे भी डॉटेड बॉन्ड, ओके। डेल निगेटिव, डेल निगेटिव, यहाँ पे भी डेल निगेटिव, ओके बच्चों। दिस इज हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ओके। चलिए बच्चों हम देखते हैं एक्सटेंडेड रेजोनेंस। एक्सटेंडेड रेजोनेंस, एक्सटेंडेड रेजोनेंस, ओके बच्चों। Here we will see extended resonance, ओके। देखिए यहाँ पे ए हम ले लेते हैं, एक कंपाउंड यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, ठीक। यहाँ पे सी कार्बन डबल बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन, ओके। यहाँ पे हाइड्रोजन, ओके। देखिए बच्चों यहाँ पे हम, यहाँ पे बच्चों देखिए निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी निगेटिव चार्ज है, ठीक। देखिए 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, तो 1 मिनट। देखिए जब ये इससे शिफ्ट होगा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे भी ये शिफ्ट होगा तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? ये किसके इक्विवेलेंट होगा? देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, ठीक है, एंड यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों। देखिए सपोज दिस इज आवर फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड कंपाउंड, ठीक है। ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, ये इसमें शिफ्ट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज, ओके बच्चों। देखिए दोनों में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है बताइए? फर्स्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा? फर्स्ट का ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू सेकेंड, ओके। दिस इज ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी in first and second compound, okay. This is extended resonance, okay. अब चलिए बी देखते हैं हम बच्चों। कंपाउंड बी इज, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, कुछ ऐसा है बच्चों कंपाउंड हमारा। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट कंपाउंड,
ओके, इक्विवेलेंट टू दिस कंपाउंड, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड। ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। ओके बच्चों, ये हमारा एक्सटेंडेड रेजोनेंस है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कंपाउंड हो गया, दिस इज आवर सेकंड कंपाउंड। दोनों में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है बताइए? फर्स्ट की स्टेबिलिटी सेकंड से ज्यादा है। ओके, सो ये वी राइट स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकंड। ओके, ओके बच्चों, ये हमारा इक्विवेलेंट रेजोनेंस शो कर रहा है। ठीक है, सॉरी, एक्सटेंडेड रेजोनेंस शो कर रहा है। आगे हम देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, यहाँ पॉइंट बना के। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड bonds. Okay, second stability of non-polar resonating structure is greater than stability of polar resonating structure. ओके, 1 मिनट बच्चों, इसको सेंटेंस थोड़ा सही कर लो। 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाइए। यहाँ पे लिख लो ग्रेटर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। 1 मिनट रुक जाइए, बस सही कर दे रहा हूँ। A greater number of covalent bond makes a resonating structure more stable। ओके बच्चों, greater the number of covalent bond makes a resonating structure more stable. Stability of non-polar resonating structure is greater than stability of polar resonating structure। ओके, थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिए। थर्ड पॉइंट इज add more electronegative atom negative charge and stable। okay, add more electronegative atom
negative charge at more electronegative atom, negative charge stable, okay, and at least electronegative atom, positive charge stable, okay. Fourth point, stability of polar resonating structure, stability of polar resonating structure with complete octet, stability of polar resonating structure with complete octet is more stable। बच्चों 1 मिनट, यहाँ पे ऐसे लिख लो, इज मोर करके मत लिखो, यहाँ पे ऐसे लिख लो ना, इज ग्रेटर देन, या फिर यहाँ पे लिख लो इज ग्रेटर देन स्टेबिलिटी ऑफ polar resonating structure with incomplete octet, stability of polar resonating structure with complete octet is greater than stability of polar resonating structure with incomplete octet। ओके बच्चों, ये अभी हमने देखा स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ओके। कुछ यहाँ पे पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। डिस्टेंस फैक्टर देख लेते हैं। देखिए डिस्टेंस फैक्टर, 1 मिनट। देखिए बच्चों, जब हमारा पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, जब डिस्टेंस जो है डिक्रीज होता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज का डिस्टेंस डिक्रीज होता है, ठीक है, डिस्टेंस डिक्रीज, ओके। सो स्टेबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। स्टेबिलिटी इंक्रीज, ओके बच्चों। एंड जब हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस इंक्रीज होता है, डिस्टेंस इंक्रीज, तो हमारी स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ओके। स्टेबिलिटी डिक्रीज, ओके बच्चों। नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए जब हमारा निगेटिव एंड निगेटिव चार्ज के बीच डिस्टेंस डिक्रीज होता है, डिस्टेंस डिक्रीज होता है, ठीक है, डिस्टेंस डिक्रीज, देन स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है। जब निगेटिव और निगेटिव चार्ज के बीच डिस्टेंस जो है डिक्रीज करता है, तो स्टेबिलिटी भी क्या करती है, डिक्रीज होती है, ठीक है बच्चों। एंड जब डिस्टेंस इंक्रीज होता है,
निगेटिव और निगेटिव चार्ज के बीच डिस्टेंस इंक्रीज, डिस्टेंस जब इंक्रीज करता है तो स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करता है। ओके, स्टेबिलिटी इंक्रीज। ओके बच्चों, ये हमने देखा डिस्टेंस फैक्टर ऑफ पॉजिटिव निगेटिव चार्ज एंड निगेटिव निगेटिव चार्ज। ओके, जब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच डिस्टेंस डिक्रीज होता है तो स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होता है। ठीक है, एंड जब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो स्टेबिलिटी भी डिक्रीज करता है। ठीक है, और जब निगेटिव और निगेटिव चार्ज के बीच डिस्टेंस जो है डिक्रीज करता है तो स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होता है। ठीक है, एंड जब डिस्टेंस बिटवीन निगेटिव और निगेटिव चार्ज डिस्टेंस जो है डिक्रीज होता है तो स्टेबिलिटी भी, डिस्टेंस जब इंक्रीज होता है तो स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होता है। ओके,